Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to revise the chapter जो हमने rain, thunder and lightning के बारे में study किया था. इन phenomena को देखा how they form into the nature and they occur. What can be the precautions we can take whenever these such type of phenomena happen, and what can be the things we can restore, right? That is the thing we have seen. Today we are going to revise that chapter and we will be doing some Olympiad level questions based on that, right? So let's get started. You all know that we do deal with the school examination as well as the Olympiad. So basically, if you are the one who is studying for the school examination, if you are the one who is studying for the Olympiad, then you can watch these video lectures and you can join our Telegram channel. So what you need to do is you need to write the code TTB08 in the search box of the Telegram app. When you do so, 8th class का channel appear हो जाएगा. You can join that channel. You can access all the DPPs and study material along with the notifications of the video classes. Alright, now let's get started and see this. This is the team which is going to help you a lot as we are putting our efforts, so much efforts into the content we are going to provide you and the way we are getting to know with the content to you all, right? That is the main thing, and we are providing these content from Kota to you all, right? And that is for free for everybody. So anybody can watch these video lectures and they can study from these video lectures. They can gain all the knowledge they need to crack the examination. That is the thing you need to understand about these lectures. So if you are the one who is watching these video lectures, then you can share these video lectures to every one of your friends so that they can also study from these and they can also achieve their target they have set for yourselves. Definitely, right? So now see, in accordance to that, we have also created some packages for you all. So if you are want to join the packages, then you can go on our website, that is www.talkingtextbooks.in. That is the website for us. You need to go on that website and then you can get 2 type of packages over there for every class, right? There are 2 packages for every single class, right? That is the main thing from 6 to 10, right? So for class 8, you can join these packages. These are the 2, one a full package and the test series. So basically full package includes all the necessary things you need to crack any examination. For example, the study material, video classes, right, homework submission feature, bi-weekly quizzes and the periodic test papers. So all the testing part, studying part, homework part, all is included in this single package, right? And if you are only want the test series, then you can join that also. In which you are going to get the periodic test papers, bi-weekly quizzes and the recorded and live classes. Alright, and what you need to do is, if you want to buy them, then you can use my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. So if you call us on this number, all your queries will be resolved and we will be happy to know you that you want to know more about these packages. Alright. Now, we are going to revise the chapter first. So, promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is the first most thing you need to understand about your studying part, right? हम लोग नया नया study करते हैं, हम लोग नई नई चीज़ों को जानते हैं, जानना ही ज़रूरी नहीं है. We must have that knowledge inside our brains, right? So that we can use that whenever we want to use. Alright. So basically आपको ये अपने दिमाग में बिठाने के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप स्टडी कर रहे हैं, उनको दिमाग में बिठाने के लिए रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. आपको हमेशा रोज़ाना रिवाइज करना है, ठीक है? एवरी सिंगल डे एटलीस्ट हाफ एन आवर डू रिवाइज. ऑलराइट, दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट थिंग. और यहाँ पर आपको पता है क्या करना है. जैसे हम लोग अभी 9 चैप्टर पे हैं, सो देयर आर 8 चैप्टर्स फॉर यू टू रिवाइज, राइट? हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को रिविजिट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है? एंड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको वापस देखिए. दैट वुड डेफिनेटली गोइंग टू लेट दैट नॉलेज स्टक इन योर ब्रेन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट विल ओनली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, राइट? सो अच्छे मार्क्स लेके आना, अच्छा रैंक लेके आना, ये तभी हो सकता है वेन एवर यू रिवाइज थिंग्स अगैन एंड अगैन. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट वी हैव सीन अबाउट रेन वाज दैट कि भाई ये जो रेन होती है ये किस तरीके से फॉर्म होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इवापोरेशन का प्रोसेस होता है. इवापोरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, पानी की वाटर जो बॉडीज होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, फॉर एग्जांपल लेक्स, रिवर्स, सी,
उनके टॉप सरफेस से जितना भी यू कैन से हीट उनको मिल रही है फ्रॉम द सन वो एब्जॉर्ब करती है अपर सरफेस एंड दे इवेपोरेटेड बिकॉज दे गॉट द काइनेटिक एनर्जी, दे कन्वर्टेड उस जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में है राइट इन दी सी एंड द रिवर्स राइट। तो उस वाटर को जब सनलाइट मिलती है, जब हीट मिलती है, तो वो अपना फेस चेंज कर लेता है, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे हैव अ हाई टेम्परेचर सो दे गो अप इन द एयर राइट, दे गेट कलेक्टेड ओवर देयर बिकॉज ऊपर जाके उन्हें मिलता है ठंडा टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, टाइनी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जाके स्टिक हो जाएंगे, उनके ऊपर चल जाएंगे, उनके ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन जैसे 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 ये पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कलेक्टेड हो जाते हैं, और जब ये इतने ज़्यादा हैवी हो जाएं कि ये फ्लोट ना कर पाएँ तो क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में पानी वापस ज़मीन पर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि भाई ये जो क्लाउड्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रिवर और द सी और लेक्स पॉन्ड्स, ठीक है। इन सब से पानी की ऊपर वाली सरफेस से क्या हो रहा है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, दे गो इनटू द एटमॉस्फेयर। जब वो ऊपर जाते हैं तब क्या होता है, तब पानी जम जाता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर होता है राइट। तो वो जो उनका गैसियस फेज था वो वापस से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, दे गेट कलेक्टेड ओवर देयर ऑन द डस्ट पार्टिकल्स राइट एंड दे फॉर्म द क्लाउड्स, ठीक है। थोड़े बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो दे आर द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स बना लेते हैं। फिर जब क्या होता है, दे बिकम सो हैवी टू गेट फ्लोट ऑन दी इन द एयर। अगर वो बहुत ही ज़्यादा फ्लोट न कर पाए, इतना ज़्यादा उनके पास अमाउंट हो जाए वाटर का, एंड देन जब ऐसा होता है देन ओनली रेन फॉल्स राइट। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज द वाटर साइकिल, जहाँ पे धरती पे से ही मतलब अर्थ की सरफेस से ही पानी ऊपर जाता है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वही पानी नीचे आ जाता है। सो दिस इज नोन एज द वाटर साइकिल विच रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड इन्हीं के दौरान, इसी प्रोसेस के दौरान वी आर गोइंग टू सी द थिंग्स नोन एज द लाइटनिंग, थंडर, ठीक है, वो सभी इसी उसमें बनते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द चार्ज क्लाउड्स। सो देखिए क्लाउड्स एक्चुअली क्या होते हैं, क्लाउड्स में छोटे छोटे यू कैन से आइस के पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल्स, तो इन सब के कलेक्शन को हम क्लाउड बोलते हैं। ये क्लाउड विद द एयर वन प्लेस से सेकेंड प्लेस तक ऐसे उड़ते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस राइट। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं ये जनरली फ्लोट होते रहते हैं, बट आपको पता है कि ये एक कंडक्टर नहीं होते राइट। तो क्या होता है, जब कभी भी एक क्लाउड आ रहा है, दूसरा क्लाउड आ रहा है, जब या फिर दोनों साथ जा रहे हैं, तो व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर, सो व्हाट हैपेंस, वहाँ पर चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। जो भी साइड रब हुई है फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, तो इनसे रब होने के कारण वी ऑल नो दैट रबिंग प्रोसेस से क्या होता है, चार्ज जो होते हैं वो वन बॉडी से उछलकर सेकेंड बॉडी में चले जाते हैं राइट। सो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है, चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। क्लाउड के लोअर यू कैन से पार्ट पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और क्लाउड के अपर पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है राइट, दे गॉट एक्यूमुलेटेड ओवर देयर। फिर वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा चार्ज बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, बहुत सारा चार्ज बिल्डअप हो जाता है क्लाउड के अंदर राइट। फिर आप देखिए कुछ भी नहीं होता जब तक ये इनफ अमाउंट का बिल्डअप नहीं हो, लेकिन जैसे मान लीजिए नॉर्मली नीचे नेगेटिव चार्जेस हैं, ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, दे आर कलेक्टेड ऑन अ क्लाउड। बट जब कभी भी कोई दूसरा अपोजिट क्लाउड आ रहा है, अपोजिटली चार्ज क्लाउड आ रहा है, दैट मीन्स अगर किसी और क्लाउड का अपर सरफेस फर्स्ट वाले क्लाउड के लोअर सरफेस के पास से गुजरते हैं, तो देयर आर दी अपोजिट चार्जेस एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन क्या होता है, जो चार्जेस हैं वो वन क्लाउड से लेकर दूसरे क्लाउड में चले जाते हैं, ठीक है। तो जब इतना ज़्यादा चार्ज हो जाए कि भाई वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक जंप ऑन करने लगे, तब जाके वहाँ पर आपको लाइटनिंग दिखाई देती है, ठीक है। बट ये वाली जो लाइटनिंग होती है इतनी ज़्यादा ग्लोई नहीं होती, आपको इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा ये राइट। तो ये सिर्फ क्या होगा, चार्जेस का वन प्लेस से एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक जाना ही होगा। बट ये फिर और दिक्कत की बात है, वो दिक्कत की बात क्या कि एयर तो कंडक्टर होती ही नहीं, एयर तो इंसुलेटर होती है। तो फिर क्लाउड्स में से एक क्लाउड में से दूसरे क्लाउड में कैसे क्या चार्जेस, उसके लिए क्या होता है, व्हेनेवर दैट जो अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में हुआ, अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स का जो अट्रैक्शन है,
वो अट्रैक्शन एक्चुअली में ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज वहां पर क्या किया जाता है, चार्जेस को पुल किया जाता है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, सो दे गॉट अट्रैक्टेड फ्रॉम वन यू कैन से क्लाउड टू दी अनदर वन। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटी होती है ये किसकी वजह से होती है, यू कैन से बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर देयर, एंड ये एयर के कुछ लेयर्स में क्या होता है, किस तरीके से जाते हैं, जंप ऑन करते हैं चार्जेस फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर वन, वो लेयर्स में करते हैं। सो वेनेवर जब कभी भी जो क्लाउड्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे क्लाउड के चार्जेस को, सो उस टाइम पर एग्जैक्टली उस टाइम पर व्हेनेवर दे ट्राई टू डू सो, बहुत ही तेजी से दे फ्लो फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर। इन दैट केस वहां पर वो लेयर बाय लेयर एयर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं, टेयर अपार्ट कर देते हैं। एंड इन दैट केस जब वो ऐसा करते हैं, जब एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो रहे होते हैं, टेयर अप हो रहे होते हैं, एट दैट मोमेंट वहाँ पर एक्चुअली में इतना ज़्यादा यू कैन से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, अराउंड 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, बिकॉज ऑफ दी मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। बहुत तेज़ी से चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेयर अपार्ट हो जाते हैं, एंड दे गॉट वेरी मच हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी अचानक से उन्हें मिलती है। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पर यू कैन सी एक तरीके से थंडर वहाँ पर आ जाता है, साउंड सुनाई दे जाती है। तो दैट थंडर जो आप साउंड सुनते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दी यू कैन से द लार्ज साउंड जो कि प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जैसे ही चार्ज पार्टिकल एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जा रहे हैं, वैसे ही क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जाते हैं। व्हेन दे मूव विद वेरी 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 फास्ट स्पीड, तब वहाँ का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाता है। सो एट दैट टेम्परेचर जितने भी मॉलिक्यूल्स एयर के वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, एंड दे एक्सपेंड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड एनर्जी मिलने की वजह से एयर क्या होती है, वहाँ की जो एयर होती है वो एक्सपेंड करती है। बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंशन, उस एक्सपेंशन की वजह से वहाँ पर क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, एंड we know that sound is produced by the vibrating particles. So whenever the particles vibrate, तब जाके आपको वो sound from those vibrations आपको आप तक पहुंचती है in the form of thunder, or as you can say sound of the thunder. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है that is going to be said as the thunder. ठीक है, ये हमें एक्चुअली में वहाँ पर मिलता है, देखना है, and this process occurs to step by step. मतलब जब जो चार्जेस होते हैं वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जा रहे होते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ये जो पाथ फॉल आउट हो रहा है इसे हम स्टेप लीडर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेप लीडर का जो पाथ है वो एक्चुअली में सिर्फ सीधे या फिर एक डेफिनेट पाथ पर नहीं जाता है, एक्चुअली में ये लेयर्स में जाता है, और ये टोटली जिगजैग पाथ होता है। देखो आपने हमेशा लाइटनिंग को ऑब्जर्व किया होगा, लाइटनिंग कभी भी एक सिंपल सा पाथ फॉलो नहीं करती, वो जिगजैग पाथ फॉलो करती है। जिगजैग पाथ मतलब यू कैन सी कि किस तरीके से इधर से उधर जा रहे हैं, इसका कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है, कैसा भी रैंडम जिगजैग पाथ ये जो है ऑब्टेन कर लेते हैं, या फिर इनका जो पाथ होता है उस वक्त तक, ठीक है, ये हम लोग मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेप लीडर की वजह से एक कंडक्टिंग पाथ वहाँ पर एयर में जनरेट हो जाता है, राइट, एंड बाय दैट वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चार्जेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जा रहे हैं, सो वी कॉल दैट एज एन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड दैट इज वाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बाय मूविंग दोज पार्टिकल्स, ठीक है, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था कि देखो ये जो स्टेप लीडर होता है, यही स्टेप लीडर क्या करता है, कंडक्टिव पाथ बनाता है एयर में, फ्रॉम क्लाउड टू वन क्लाउड, और या फिर क्लाउड से क्लाउड नहीं तो फ्रॉम क्लाउड टू दी अर्थ, ठीक है। तो ये जो पाथ बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय दी स्टेप लीडर, ठीक है, इसको भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे जो सडन रश होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का, वो एयर को 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप कर देता है, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ग्लो ऑफ लाइटनिंग आपको नजर आती है, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। और ये लाइटनिंग आपको एक्चुअली में नजर आ रही होती है, जो कि आप यहाँ से देख रहे होते हैं, एज अ लाइटनिंग आप जैसे बोलते हैं। सो दिस इज द लाइटनिंग विच यू आर गोइंग टू सी। जब कभी भी चार्जेस मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एट दैट मोमेंट वहाँ पर जो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं एयर मॉलिक्यूल्स का, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइट एंड हीट एक साथ एमिट होती है,
राइट। एंड जब वो लाइट और हीट एक साथ एमिट होती है तो हीटअप से तो सारा का सारा एक्सपेंड हो जाता है, यू गॉट अप द थंडर साउंड, ठीक है। जैसे वो एक्सपेंड होते हैं और लाइट एनर्जी आपको एज अ लाइटनिंग दिखाई देती है। ऑलराइट, चलो अभी हम देखते हैं थंडर को। वैसे तो थंडर हम लोगों ने देख दिया कि भाई थंडर इज एक्चुअली जस्ट द एक्सपेंशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। जब वो बहुत ज़्यादा अचानक मिलने वाली एनर्जी, और वो भी बेहद ज़्यादा एनर्जी, 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का हीट अप वहाँ मिल रहा है, वो टेम्परेचर मिल रहा है। सो एट दैट मोमेंट यू आर गोइंग टू गेट सो मच एनर्जी इन दैट एनवायरमेंट, ठीक है। उस एनर्जी को, अचानक से मिलने वाली एनर्जी की वजह से एयर जितना ज़्यादा एक्सपेंड होती है, तब उसकी वाइब्रेशन से, एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से जो साउंड हमें मिलती है, दैट इज थंडर ओनली, राइट। तो ये थंडर भी क्यों मिल रहा है हमें, क्यों हमें पता चल रहा है? बिकॉज ऑफ दैट, ऑफ द एक्सपेंशन द एयर गॉट टू डील विद, राइट। एंड हम लोग यही बोल सकते हैं कि जब कभी भी आपको एक चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सो वहाँ पर आपको एक स्पार्क नजर आता है। whenever they are neutralized or when they move from one place to another, we got to see some spark, and that is only the lightning. So whenever charges move from one cloud to another or cloud to ground, तो उस वक्त हमें lightning देखने मिलती है उनके movement की वजह से। एंड थंडर हमें क्यों मिलता है? उनके मूवमेंट की वजह से जो वहाँ पर टेम्परेचर हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर एक्सपेंड्स, दैट साउंड, दैट एक्सपेंशन साउंड इज नोन एज दी थंडर, जो कि हमें एज अ थंडर पता चलती है। ऑलराइट, सो बेसिकली हम लोग ये देख सकते हैं कि सिर्फ यही जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, सिर्फ यही हमें थंडर और यू कैन से लाइटनिंग के बारे में मिलता है, राइट। थंडर और लाइटनिंग बिल्कुल साथ साथ होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई डिस्टेंस है, साथ साथ अगर होते हैं, बट हमें थंडर पहले नहीं सुनाई देता, लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है। रीजन इज लाइट बहुत तेज ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। और साउंड की स्पीड कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड, तो वो तो काफ़ी कम होती है। ऑलराइट, सो यू गॉट टू हियर द साउंड आफ्टर, यू कैन से आफ्टर सम टाइम दैन द लाइटनिंग, ठीक है। और जितने भी वी कैन से कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं थंडर एंड लाइटनिंग को, तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो ये है कि चार्जेस जो अक्यूमुलेट हो रहे हैं किसी भी क्लाउड में, सिर्फ उसी की वजह से वी आर गोइंग टू सी द लाइटनिंग हियर। अगर क्लाउड में ऐसे चार्जेस नहीं अक्यूमुलेट होते हैं तो दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू सी द लाइटनिंग हियर एट ऑल, ठीक है। उसके अलावा देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब कभी भी ट्राई टू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक कंडक्टिंग पाथ बनता है, एंड दैट कंडक्टिंग पाथ कैन बी टेकन एज द स्टेप लीडर। ऑल्सो बाय दैट पाथ यू आर गोइंग टू सी द स्पार्क और द लाइटनिंग ओवर देयर, ठीक है। तो ये मेन चीजें थी। दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन बी टेकन एज द लाइटनिंग, एंड थंडर का जो पूरा प्रोसेस है वो वहां पर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। मेनली ये सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जहां पर एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक जो है लाइटनिंग जाती है। नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है वहाँ पर, वेन एवर इट हैपन्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है एक तो, राइट। एंड जो करंट फ्लो होता है, जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ वेरी 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 मच ग्रेट, ठीक है। तो you can get 10 to 20,000, you are going to get amperes of the current over there, and 30,000 degree Celsius temperature over there. That is very high much energy, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, हाई एनर्जी डिस्चार्ज होता है। ऑलराइट, नाउ वी नो दैट कि भाई आप लोगों को थंडर बाद में क्यों सुनाई देता है? बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी लो as compared to the speed of light, which is 3 × 10⁸ meter per second, and this is the only reason कि आपको जो है lightning और thunder different टाइम पर सुनाई देते हैं। But if कभी भी ऐसा हो जाए कि आपको lightning और thunderstorm एक ही टाइम पर सुनाई दे रहा हो, तो remember and you need to make it like a real thing कि हो सकता है वो जो lightning और thunder है वो तुम्हारे सिर के ऊपर ही हो। That means a few miles away from you, right? So it may happen. So you need to make sure कि अगर तुम्हें lightning और thunder एक ही टाइम पे सुनाई दे रहे हैं, that means you need to be cautious over there and you should definitely take some precautions to save you from the lightning, ठीक है। उसके अलावा we can say the electric sparks जो हमने देखे थे। So basically electric sparks क्या होते हैं?
इलेक्ट्रिक स्पार्क्स तब होते हैं जब कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज व्हेन एवर दे मीट अप, और यू कैन से व्हेन एवर वन बॉडी में से दूसरी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, दैट इज नोन एज द स्पार्क। ऐसे स्पार्क आपको विंटर में सुनाई दे सकते हैं व्हेन एवर यू टेक ऑफ योर स्वेटर और योर वोलन क्लोथ्स, ठीक है, एंड इवन व्हेन यू सिट ऑन अ प्लास्टिक चेयर, कभी भी आपको ये स्पार्क्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। दीज स्पार्क्स एक्चुअली कैन बी टेकन एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये चार्ज क्या होते हैं, ये हमेशा इंसुलेटर की बॉडीज पर होते हैं, ठीक है, एंड इंसुलेटर की बॉडीज पर होने के कारण दे डू नॉट मूव, दे स्टिक टू दैट प्लेस ओनली, ठीक है। वहां पर अगर चार्जेस हैं तो वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे गॉट टू डिस्चार्ज व्हेन एवर समथिंग यू टच मेटालिक एंड ऑल। कभी कभी जैसे आपको करंट के झटके लगे हो, मतलब समटाइम्स यू सिट ऑन अ प्लास्टिक चेयर एंड यू गेट अप, तो आपको हो सकता है आप मेटालिक डोर को अगर आप पकड़ोगे, टच करोगे तो आपको एक झटका मिल सकता है, ठीक है। द रीजन इज द चार्जेस विच आर एक्यूमुलेटेड ऑन यू गेट डिस्चार्ज थ्रू द मेटल डोर, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं जो नॉर्मली बहुत बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क को भी हम ले सकते हैं, ऑलराइट। ये इलेक्ट्रिक स्पार्क का हमने देखा था, एंड एक्चुअली में जो लाइटनिंग है ये खुद भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, जो कि बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक स्पार्क है, ठीक है। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था लाइटनिंग कंडक्टर। व्हाट इज दैट? लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? वो एक ऐसा मेथड है, बाय दैट मेथड कैन हेल्प यू इन सेविंग योर बिल्डिंग और हाउस, राइट, फ्रॉम द लाइटनिंग। हाउ? लेट मी टेल यू दैट। देखिए, जब कभी भी आप क्या करें, अपने बिल्डिंग में मेटल का कंडक्टर ले सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी मेड अप ऑफ कॉपर, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, राइट। तो आप मेटल का कंडक्टर जो यू कैन से अ रॉड, अ बिग रॉड यू कैन टेक, आप उसको सबसे ऊंचाई पर एट द रूफ टॉप और द प्लेस विच इज हाइएस्ट इन योर हाउस और इन योर बिल्डिंग, आप वहाँ पर वो मेटल कंडक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। एंड देन यू कैन कनेक्ट दैट मेटल कंडक्टर टू द वेरी वेरी डीप इनसाइड द अर्थ देयर इज अ मेटल प्लेट, ठीक है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू डू सो व्हाट हैपेंस, जैसे ही बादल जिनके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस डाउन साइड में, डाउन पार्ट में जो नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो रखे हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेटेड हैं, वो जैसे ही मेटल कंडक्टर के ऊपर से जाएंगे तो क्या होगा, वो मेटल के अंदर से सारे पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेंगे, राइट। बहुत तेजी से वो अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। जैसे ही वो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेंगे, वैसे ही क्या होगा, देयर वुड बी द पाथ बिटवीन दी नेगेटिव एंड दी पॉजिटिव, एंड उस पाथ की वजह से सारा नेगेटिव चार्ज थ्रू द क्लाउड विल गेट डिस्चार्ज इनटू द अर्थ थ्रू द मेटल कंडक्टर। सो इन दैट केस आपकी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। बट अगर ये मेटेलिक कंडक्टर नहीं होता है और जो क्लाउड है वो बिल्डिंग में से सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस को अगर वो अट्रैक्ट करने लगेगी, सो इन दैट केस वो डिस्चार्ज जो कि एक मेटल के थ्रू अर्थ में चला गया, सारा का सारा चार्ज, वही डिस्चार्ज बिल्डिंग के ऊपर भी हो सकता था, एंड इट कैन मेजरली डैमेज द बिल्डिंग। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो बिल्डिंग है वो लाइटनिंग से प्रोटेक्टेड हो, बाय हाउ, मेकिंग अ लाइटनिंग कंडक्टर ओवर देयर, ठीक है। तो यू कैन प्लेस दैट कंडक्टर इन योर ओन हाउस, ऑन योर ओन बिल्डिंग, राइट, दैट इज द मेन थिंग। ऑल्सो लाइटनिंग हमेशा ईजीएस्ट पाथ चुनती है, ठीक है, मतलब लाइटनिंग का इन द सेंस की जो चार्जेस होते हैं जब वो डिस्चार्ज होना चाहते हैं, सो दे चूज द ईजीएस्ट पाथ, एंड दैट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी द हाईएस्ट वन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी एक यू कैन से प्लेन एरिया में इकलौता कोई ट्री है, इलेक्ट्रिक पोल है, वो बहुत ऊंचा है, तो उसके ऊपर लाइटनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर लाइटनिंग होने के, लाइटनिंग गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब कभी भी ऐसा हो रहा हो, लाइटनिंग थंडर आसपास हो रहे हो, make sure that you do not go under a electric pole or a tree or under something जो कि आपके आसपास हो और वो इकलौते बीच में बड़े से खड़े हों, ठीक है। तो that is you need to make sure that you do not go over there, ठीक है। कुछ प्रिकॉशन जो आप ले सकते हैं, those precautions are that if you are moving with a car or a bus, then you need to make sure that you stay inside the car or the bus with windows and doors closed, ठीक है। in that case जो अगर lightning struck होती है तो वो metallic part से it will go into the ground, ठीक है, and if you are outside the car then lightning can struck you with the metallic part, alright। you need to make sure कि आप किसी lonely tree पर नहीं जाएंगे, ठीक है,
या फिर आप ट्री के नीचे नहीं जाएंगे, या फिर आप किसी पोल के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट डू नॉट, और आप लाई नहीं करेंगे ग्राउंड पे, दैट इज़ द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको लाई नहीं करना है, ठीक है, ग्राउंड पे लाई नहीं करना है। उसके अलावा आपको पानी में नहीं रहना है, बिकॉज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल वाटर्स में कंडक्ट होती है, तो आपको पानी में भी नहीं जाना है, ठीक है। यू नीड टू स्टे इनडोर्स, अवे फ्रॉम विंडोज एंड डोर्स, ठीक है। आपको दूर रहना है इनसाइड अ बिल्डिंग, इनसाइड अ कार, और ठीक है, ये प्रिकॉशंस अगर आप ले लेते हैं देन यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दी लाइटनिंग, ठीक है। इसके अलावा लाइटिंग कंडक्टर्स आप यूज़ कीजिए अपनी बिल्डिंग्स में, बहुत ही जो है जगह रहेगी अच्छा। एंड यू कैन ऑल्सो सिट डाउन इन अ लो लाइंग प्लेन, मतलब ऐसी जगह जो थोड़ी नीची है, ठीक है, उस जगह पर आप बैठ सकते हैं, ठीक है। आपको ओपन, लार्ज ओपन फील्ड में जो है मूव नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर जैसे बहुत बड़ा प्लेन एरिया तो आपको वहाँ भागना नहीं है, बिकॉज यू विल बी द यू कैन से हाई प्रायोरिटी फॉर लाइटनिंग टू गेट स्ट्रक ऑन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो चैप्टर था, जो हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया है, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, यू कैन चेक आउट दिस क्वेश्चन, और बहुत इजी से क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर पे मिलेंगे। इफ़ यू नो अबाउट द चार्जेस एंड ऑल, तो बहुत इजी जो है आपको मिलने वाले हैं ये क्वेश्चंस। सो देखिए, व्हाट इज द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज कॉल्ड, दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखो, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें ये बात तो पता है कि भाई जब कभी भी हम चार्जेस की बात करते हैं तो देयर हैज़ टू बी सम static. Why so? Because charges stayed on the, you can say, on some materials, for example the insulators one, right? तो इन जगह पर when we talk about electrostatics, when the charges are dressed, so we can say that the force between the two charged body is electrostatic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं बोला? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फोर्सेस होते हैं, सो देयर हैज़ टू बी सम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स में मास की वजह से लगने वाला फोर्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ का मास है, बिकॉज ऑफ दैट उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जिसकी वजह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहा है। सो बेसिकली ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस हैपन्स और एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द मासेस, नॉट बाय द चार्जेस, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैंसिल हो गया। उसके अलावा देखो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी कैंसिल हो गया, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है? व्हेन एवर द सर्फेसेज आर रफ, और वन सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है या मूव कर रही है, राइट, एट दैट टाइम फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, राइट। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तो सरफेसेस की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से है। सो बचा कौन? चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सो यू कैन गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेनेवर द टू चार्ज बॉडीज आर कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अब जैसे चार्जेस जो थे उसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, तो उन दोनों में किस तरीके का फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस एक दूसरे को अपने तरफ पुल करेंगे, ठीक है, दे विल गेट अट्रैक्टेड, अपोजिट चार्जेस गॉट अट्रैक्टेड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, second one, right? This is the second one. Suppose you are in a car and there is a thunderstorm, ठीक है। तो सिचुएशन आपको पता है, you are inside a car and there is a thunderstorm. Which of the following is the best way to protect yourself from possible harm? ठीक है, आपको स्टेप बताना है, कौन सा ऐसा स्टेप है जो आप ले सकते हैं। नंबर 1, रिमेनिंग इन द कार, कार के अंदर रहेंगे। नंबर 2, गेटिंग आउट ऑफ द कार एंड टेकिंग कवर अंडर द कार, आप कार से बाहर निकल के कार के नीचे चले जाएंगे। रनिंग टू अ नियर बाय ट्री, पास के पेड़ के नीचे चले जाएंगे। गेटिंग आउट एंड स्टैंडिंग अंडर एन इलेक्ट्रिक पोल, या तो आप बाहर चले जाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक पोल के नीचे चले जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे तीन ऐसे आपको वेज बताए गए हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को खतरे में डाल सकते हैं। देखिए, अगर आप गेटिंग आउट ऑफ द कार एंड टेकिंग कवर अंडर द कार, अगर आप कार के नीचे चले जाते हैं तो भी आपको लाइटनिंग स्ट्रक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज अगर कार के ऊपर लाइटनिंग होती है तो उसके थ्रू, उसकी मेटालिक बॉडी के थ्रू वो आप तक पहुंच जाएगी एंड यू विल बी देयर
राइट। सो बेसिकली ये जो वे है ये आपको मरवाने के चांसेस हैं, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा डेंजर में डाल सकते हैं। नियर बाय ट्री के नीचे अगर आप चले जाएंगे तो भी यही काम होगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्री के ऊपर भी तो लाइटनिंग स्ट्रक होती है, राइट। सो यू शुड नॉट डू दैट, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। गेटिंग आउट एंड स्टैंडिंग अंडर इलेक्ट्रिक पोल, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल के नीचे जाके आप खड़े हो रहे हैं, उस पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, राइट। तो यू शुड नॉट डू दैट। सो द ओनली ऑप्शन यू नीड टू हैव इज टू स्टे इनडोर्स, ठीक है। कहीं पर भी हो, स्टे इनडोर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इफ यू आर इनसाइड अ कार, स्टे इनडोर, क्लोज ऑल द डोर्स एंड द विंडोज ओवर देयर, ठीक है। पूरा कवर करके रखिए, पूरा कार को क्लोज कर दीजिए, देन ओनली यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक। इवन कार के ऊपर अगर लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो जाती है तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप घर में हैं तो सारे विंडोज और डोर्स उन सब से दूर हो जाइए और अपने घर में ही रहिए, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। तो अगर आप कार में हैं और थंडरस्टॉर्म आ रहा है तो आप कार में ही रहेंगे, कार से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, राइट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट, व्हाट इज दैट? दैट इज कूलम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। देखो इतनी सारी यहाँ पर एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये आपको क्या मिलेगा? कूलम मिलेगा, ठीक है। एसआई यूनिट अगर हम देखें इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है वो क्या होती है? एम्पियर, ठीक है। फिर आता है वोल्ट। वोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है? वोल्ट होता है एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो होता है वोल्ट। फिर देखो वॉट, एसआई यूनिट ऑफ पावर, वो होता है वॉट, ठीक है। नाउ यू नो ऑल दी एसआई यूनिट्स। देखो एसआई यूनिट कूलम किसकी होती है? चार्ज की। एम्पियर किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। फिर आता है वोल्ट। वोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर आता है वॉट। वॉट किसका होता है? दैट इज पावर। जैसे कि हम लोग बल्ब की पावर बताते हैं ना, 60 वॉट 100 वॉट का बल्ब, राइट। सो वही जो पावर है दैट इज दी एसआई यूनिट ऑफ, नो यू कैन से वॉट इज दी एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए इसे आप। ऑलराइट, चले अभी फटाफट से आगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर लाइटनिंग रॉड्स मेड अप ऑफ? क्या वो कॉपर के बने होते हैं? क्या वो प्लास्टिक के बने होते हैं? क्या वो बैकेलाइट के बने होते हैं? क्या वो सैंड पेपर के बने होते हैं? तो देखिए लाइटनिंग रॉड, ये जो लाइटनिंग रॉड है दैट मस्ट हैव टू बी कंडक्टर होना चाहिए, तभी तो ये पूरे घर को सेफ रखेगा और लाइटनिंग को एक रास्ता देगा कि वो अपने रास्ते से उस मेटेलिक रॉड से, उस कंडक्टर से होते हुए धरती में चले जाए, ठीक है, अर्थ में चले जाए, राइट। सो दैट हैज टू बी कंडक्टर ओनली। सो लाइटनिंग रॉड जो होती हैं वो किसकी बनी होनी चाहिए? पहली बात तो कंडक्टर की बनी होनी चाहिए, शुड बी मेड अप ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। अब आप मुझे बस ये बता दीजिए कि इनमें से कौन सा कंडक्टर है और कौन सा नहीं है। सो देखो हमें ये बात पता है कि कॉपर जो है वो कंडक्टर है, तो हमारा ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक ये इंसुलेटर है। बैकेलाइट एक तरीके का इंसुलेटर है जिसे हम स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। और बैकेलाइट के जो स्विचेस होते हैं वो बनते हैं,
राइट। तो स्विचेस वगैरह वो भी इंसुलेटर होते हैं, वो जिस मटेरियल से बनते हैं दैट इज द बेकेलाइट, ठीक है। सैंड पेपर ये भी एक इंसुलेटर है, ठीक है। सो वी गॉट ओनली कॉपर हियर, कॉपर का बनना चाहिए लाइटनिंग रॉड। ऑलराइट, फटाफट से नोट कर लीजिए एंड देन वी विल बी मूविंग अप टू द क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाई इज अ लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल्ड ऑन अ बिल्डिंग? क्यों एक लाइटनिंग कंडक्टर को हमें इंस्टॉल करना चाहिए बिल्डिंग पर? तो देखो, सो दैट इट कलेक्ट्स द इलेक्ट्रिक पावर प्रेजेंट इन द लाइटनिंग, लाइटनिंग के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक पावर है उसको कलेक्ट कर ले। सो दैट इट रिपेल्स द लाइटनिंग दैट फॉल्स ऑन द बिल्डिंग, उसको रिपेल कर दे ताकि वो गिरे ही नहीं। So that it forces the lightning to fall in an area where there are no buildings. इस तरीके से वो कि भाई वो इस तरीके से मजबूर कर दे लाइटनिंग को कि वो उस जगह पे चले जाए जहाँ पे बिल्डिंग नहीं हो। So that it conducts electric charge to the ground when lightning strikes the building. So basically this one is the correct one, right? Because हमें मेन क्या काम करना है, लाइटनिंग में जो भी चार्जेस हैं उनको हमें कंडक्ट करवा के धरती तक भेजना है। So we are providing a path for electric करंट और यू कैन से लाइटनिंग सो दैट इट गोज इनसाइड द अर्थ, ठीक है। सो देखो, ना तो ये कलेक्ट करती है, इकट्ठा नहीं करती है, ये तो सिर्फ एक रास्ता है, जरिया है जिसके थ्रू चार्ज कैन फ्लो, राइट। तो भाई कलेक्ट नहीं करती है, रिपेल नहीं करती है, फोर्सेस नहीं करती है। अब बहुत ही यू कैन सी वी नो वी हैव सिटीज विच आर वेरी मच पॉपुलेटेड, तो ऐसा तो हम जगह ही नहीं देख सकते कि इफ लाइटनिंग इज स्ट्राइकिंग ऑन और हम किसी तरीके से लाइटनिंग को ऐसी जगह भेज दें जहाँ पर बहुत ही कम बिल्डिंग्स हो या बिल्डिंग्स नहीं हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो ट्रीज होंगे, ट्रीज पर फॉल हो सकती है। सो बेसिकली वी शुड नॉट लेट दैट हैपन, राइट। सो बेसिकली डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जहाँ पर हम बोलने वाले हैं कि कंडक्टर क्या करेगा, सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एक पाथ प्रोवाइड करेगा जिस पाथ से सारे चार्जेस फ्लो होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। फटाफट से नोट कर लेंगे इसे करेक्ट वन के लिए। वैसे तो ये सिर्फ टिक द करेक्ट आंसर है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच फंडामेंटल पार्टिकल इज इन एन एटम हैज नो चार्ज? आई टोल्ड यू देयर आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ओवर देयर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, राइट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल होता है जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, राइट। और बचा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे होता है नो चार्ज, ठीक है। देयर आर 3 यू कैन से फंडामेंटल पार्टिकल्स, और इन तीनों में से ही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ऑलराइट, वैसे ही बिल्कुल। सो यहाँ पर नो चार्ज के लिए पूछा गया है भैया, नो चार्ज ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो दैट इज न्यूट्रॉन। सो वी कैन से सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चले। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें बेसिकली इन तीनों स्टेटमेंट से पता करना है कौन सा सच है कौन सा झूठ, ठीक है। फर्स्ट देखिए, अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में अट्रैक्ट समथिंग दैट इज न्यूट्रल। एक चार्ज बॉडी क्या किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, दैट इज न्यूट्रल बॉडी। वी हैव लर्न इन दी इंडक्शन, राइट, हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन में ये सीखा था दैट इट हैपेंस, राइट। एक न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी इज 0, ये हम बोलते हैं, राइट। सो व्हेनेवर कोई भी चार्ज बॉडी को अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाएंगे,
ठीक है, जैसा कि हमने सीखा था कि भाई लेट्स से दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारा चार्जेस है बट इक्वल अमाउंट में है। अगर हम कोई भी रॉड, कोई भी बॉडी को जो कि लेट्स से प्लस चार्ज की बॉडी है, अगर हम पास लेके जा रहे हैं तो इस प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होके सारा नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर कलेक्ट हो जाएगा एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज विल गेट कलेक्टेड ऑन द अपोजिट सरफेस। ठीक है, सो इस तरीके से दिस कैन हैपन। तो ये तो एक न्यूट्रल बॉडी थी बट फिर भी इस अट्रैक्ट तो हो रही है ना, इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय दिस वन, सो वी कैन से दिस इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, वी कैन से, यहां लिख देते हैं ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड देखो, एन एटम दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। एन एटम दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखिए कि अगर एक एटम है, ठीक है, एक एटम है और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, आ रहा है किसी और बॉडी से, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स से ये एक एटम था जिसके ऊपर मान लो तुम 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। ठीक है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, मान लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इट वुड बी लाइक लेट्स से 2 + 1, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस बॉडी के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और 2 प्रोटॉन्स, तो ये कैसा चार्ज हो गया, ज्यादा कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, तो ये कैसी बॉडी हो गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी के ऊपर जाता है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। ठीक है, उसी तरीके से कोई बॉडी अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाए, अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पर कमी किसकी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की, ज्यादा कौन होंगे, प्रोटॉन्स, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो बॉडी बन जाती है पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो बॉडी बन जाती है नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस वन इज द फॉल्स वन, क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव नहीं बनती, नेगेटिव बनती है। फिर देखो, चार्जेस आर ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज चार्जेस जो होते हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ही जा सकते हैं। ऑलराइट, डेफिनेटली वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बिकॉज दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप ऑन करके जा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ, यू कैन से बाय रबिंग, फ्रिक्शन की वजह से। सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। वी आर गोइंग टू गेट ट्रू, फॉल्स, ट्रू, राइट। देखिए कौन से इसमें है, ट्रू और ट्रू, पहला वाला, तो ये कैंसिल, इन दोनों में फॉल्स है फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर देखो, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वी कैन से ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, फटाफट से नोट कर लेंगे इसे। एट क्वेश्चन की तरफ चले। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज बलून इज ब्रॉट नियर इट। सो देखो, यहाँ पर हमने बोला कि न्यूट्रल है बॉडी। ठीक है, तो मतलब देखो ये जो स्टैंड पे खड़ी हुई है, दिस बॉडी इज न्यूट्रल, 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 न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब जितना पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होना चाहिए। ठीक है, बट इसमें देखो, इसमें तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये कैंसिल। इसमें देखो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये कैंसिल। ठीक है, इन दोनों में देखो 3 प्लस है, 3 माइनस, 3 माइनस 3 प्लस, तो वी कैन से कि भाई ये न्यूट्रल बॉडीज हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इन न्यूट्रल बॉडी के पास हम क्या लेके गए, एक नेगेटिवली चार्ज बलून लेकर गए, मतलब दिस बलून इज नेगेटिवली चार्ज, वो लेके जा रहे हैं। जैसे हम पास लेके जाएंगे तो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस न्यूट्रल बॉडी पर देखने मिलेगा। तो देखो, इस बॉडी के ऊपर है सारा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो माइनस के पास प्लस आ जाएंगे, बिकॉज हम जानते हैं अपोजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो देखो हम लोग बोलेंगे लाइक चार्जेस रिपेल एंड unlike charges attract। ठीक है, तो यहां पर देखो नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव तो दूर चला गया, दूसरी तरफ चला गया, तो वी कैन से दे रिपेल, और पॉजिटिव पास आ गया, तो मतलब दे अट्रैक्ट, सो दिस इज करेक्ट,
है ना। वहीं पर यहाँ देखो नेगेटिव के पास नेगेटिव आ ही नहीं सकता बिकॉज वो तो रिपेल करेगा, तो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो हम अब बोल सकते हैं दैट हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो इसे भी। ऑलराइट, चलिए अभी हम 8th क्वेश्चन पर नाइन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हम स्टेटमेंट पढ़ने हैं, सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन। देखो, इट इज ईजियर टू जनरेट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन कोल्ड ड्राई विंटर डेज दैन ऑन वार्म ह्यूमिड डेज। ऐसा बोला जा रहा है दैट इट इज ईजियर अगर क्या कंडीशंस हो, कोल्ड ड्राई विंटर डेज हो दैन ऑन वार्म ह्यूमिड डेज, ठीक है। तो मतलब ये जो स्टैटिक चार्जेस, आप पहले मुझे एक बात बताओ कि जब हम वुलन क्लॉथ्स को वेयर ऑफ करते हैं, राइट, तो एट दैट टाइम प्लास्टिक चेयर पे अगर हम बैठते हैं एट दैट टाइम स्टैटिक चार्जेस जो हैं वहाँ पर आ जाते हैं, राइट, चार्ज वहाँ पर आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम किन की बात करें, दैट हैज़ टू बी द कोल्ड डेज सो दैट वी वेयर द वार्म थिंग्स, राइट, दैट इज द वुलन क्लोथ्स। सो बेसिकली कोल्ड ड्राई विंटर डेज में इजीली हम लोग चार्ज जो है वो क्या कर सकते हैं, एक बॉडी को चार्ज बना सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 बोलता है मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कैरीज अवे चार्जेस फ्रॉम द चार्ज सरफेसेस। सो ये जो बता रहा है वो यही बता रहा है भाई कि जब कभी भी ड्राई विंटर डेज होंगे, कोल्ड एंड ड्राई विंटर डेज, देन ओनली यू आर एबल टू मेक मच मोर easy to make the static electricity or the charges by rubbing one body and another body पे charges आ सकते हैं, ठीक है। ये क्यों है, बिकॉज अगर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, ह्यूमिड एनवायरमेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, जो मॉइस्चर होता है एयर के अंदर वो चार्ज को जो है ले जाएगा। दैट मीन्स वो क्या कर सकता है, चार्जेस को अपने साथ जो है कैरी ऑन कर सकता है। दैट इज़ द वाई, बिकॉज हमने ये देखा है ना क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, राइट। तो बेसिकली ये ट्रू बात है, वो चार्ज सरफेसेस से जो मॉइस्ट एयर है या ह्यूमिड एयर है वो क्या कर सकती है, चार्ज ले जा सकती है। दैट इज वाई दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और हमारा जो सेकेंड करेक्ट है वो भी ये बता भी रहा है ईजी क्यों है। जब ड्राई विंटर डेज होंगे तो ईजी क्यों है, क्योंकि हम चार्जेस रब करेंगे और वो चार्जेस वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये ईजी है, अगर वी वांट टू से कि भाई ईजी है, अलग तरीके से हम सही और जल्दी चार्जेस को बना सकते हैं। बट अगर जैसे ह्यूमिड एरिया हो गया तो वहाँ पर मॉइस्चर ही जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मॉइस्चर ही चार्जेस का मूवमेंट करवा देगा, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर अगर ड्राई विंटर डेज होंगे तो ईजी होगा, ठीक है, एंड अगर मॉइस्ट डेज होंगे तो इट वुड बी मोर हार्डर टू क्रिएट दी यू कैन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो वी कैन से कि दोनों स्टेटमेंट सही है एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का करेक्ट रीजन भी है, ठीक है। सो वी कैन से कि भाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है बिकॉज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो भी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑलराइट। इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और जनरली जो नॉर्मल बातें होती हैं जैसे कि आपको थंडर पहले क्यों नहीं सुनाई देता, लाइटनिंग से या फिर दोनों सेम टाइम पे क्यों नहीं सुनाई देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कितना टेम्परेचर वहाँ पर क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग, राइट, एंड ये लाइटनिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है, इनका प्रोसेस, लाइटनिंग कंडक्टर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, ठीक है, इनका प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन रिवाइज दोज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, ऑलराइट। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर। So thank you so much for watching the video. You can definitely like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.